बिल्कुल अच्छे हैं। यहाँ के और भी ऐसा लग रहा है कि आप स्कूल से बाहर निकले हो, थोड़ा सा फ्रीडम मिली है, ये सभी के चेहरे खिले से लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आज कुछ और थोड़ा देर इज न्यू एक्सपीरियंस। Dear students, we are in Agriculture Research Station, Sri Ganganagar, and we know agriculture. What is agriculture? We deals in agriculture. Agriculture development. Agriculture is the science of cultivating crops along with the rearing of animals. Kisan, farmers, you know farmers? Yes, sir. Who is the farmers? The farmers as an individual or a family of individuals who cultivates the crops, who own the land, who cultivates the crops, who rear the animals, who also grow vegetables. An individual that we generally know as a farmers. And we cater the needs of farmers. We are working for the farmers, family or farmers. And agriculture is a science. ये एक विज्ञान है. Agriculture is a science and we deal for the agriculture development. What is the science? Anybody from your side? What is science? Learning. You are getting education there. And what is education? Because we got their education. Why our parents send daily to our school? Because they need us to grow as a good human being, as a good citizen who work for nation, who work for family, who work for the state. Citizen को तैयार करना जो अपने परिवार, अपने राज्य और अपने देश के लिए कार्य करे. And that's for we need education. Dear student, education is nothing but is a process of changing the behavior of an individual in a desired direction. एक आदमी के व्यवहार को एक इच्छित दिशा में बदलने की ही प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? एजुकेशन. And here we deal higher education. Basically, education two types: school education and then higher education. You are in the school education, and we here there is a college of agriculture, and we deal in a higher education. When you go out and pass the +2 class, you have to reach in the higher classes or college education. पशुपालन के साथ साथ जो सब्जियां और फलों की जो खेती करते हैं वो मिला के क्या कहते हैं उसको? वो कौन सी विज्ञान डील करेगी? एग्रीकल्चर करेगी. वो एग्रीकल्चर करता कौन है? वो डील से फार्मर्स. फार्मर्स का कैसा चेहरा आपके ध्यान में आता है जब आप किसान बोलते हैं? तो कैसा आदमी होगा वो? Generally we have whenever we deal in a name of a particular professions, we have an image of that particular individual. Suppose we call it doctors. डॉक्टर का चेहरा अपने सामने आ जाएगा कि उसके हाथ में स्टेथोस्कोप लगा होगा, उसकी ड्रेस अलग कोट होगी. When we used to call a teacher, so teacher का एक अलग से आपके पिक्चर आएगा. ऐसे when we used to call a farmer, किसान का नाम लेते कैसा एक चेहरा आएगा आपके सामने? कैसा चेहरा आएगा?
कैसा चेहरा आपके सामने आएगा? कैसा होता है किसान? किसान में हमें अंतर है कुछ? देश का अंतर है या कोई दूसरे जो लोग यहाँ हैं या शहर में रहते हैं और ग्राम में रहते हैं उनमें अंतर है कुछ? फिर हम पहचानेंगे कैसे ये खेती करता है? बिकॉज देयर इज इमेज। उसके जो ड्रेस कोड प्रॉपर नहीं हो, उसके पास शूज नहीं हो, that what some image is there about farmers. And here in this situation we deal with the farmers. लिए सबके लिए काम करते हैं। कौन कौन काम करेंगे किसान के लिए? स्टूडेंट्स। हम we used to create or develop graduates in agriculture। एग्रीकल्चर के ग्रेजुएट तैयार करते हैं। देन we deal with the agriculture officials। हम एग्रीकल्चर ऑफिसर्स के लिए ग्रेजुएट तैयार करते हैं। we deal in the एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, ग्रेजुएट फॉर एग्रीकल्चर साइंटिस्ट। वैज्ञानिक बनते हैं जो खेती के बारे में रिसर्च करते हैं और नई नई तकनीकों का विकास करते हैं। द प्रोफेशनल नॉन एज एग्रीकल्चर साइंटिस्ट। वैज्ञानिक कौन लोग होते हैं? साइंटिस्ट कौन लोग होते हैं? आपने दोनों का अनुवाद कर दिया, हिंदी में है या mainly the scientists are the professionals or the individuals who deals in the new innovations, new research, applied science। Basic science कौन कौन सी होती है? आप बहुत थोड़ा सा किड्स है हमारा, थोड़ा सा ओरिएंटेशन में सर दूसरा है थोड़ा सा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जियोलॉजी, बॉटनी, these are the basic science। They have some principles। And the science we deals by taking the principle of the basic science, they are generally known as applied science, and agriculture is a applied science। हम कुछ प्रिंसिपल्स बॉटनी के काम में लेते हैं, कुछ जियोलॉजी के लेते हैं, कुछ फिजिक्स के लेते हैं, कुछ मैथमेटिक्स के प्रिंसिपल लेते हैं, कुछ केमिस्ट्री के प्रिंसिपल लेते हैं और उसको अप्लाइड में लेके जो भी रिसर्च है उसका कार्य करते हैं, जो कृषि विकास में काम के रूप में हम नई वेराइटी। आपके गेहूं चना सरसों जो होता है खेत में होता है, कपास होती है, गुआर, मूंगफली, सुगर के जैसे होता है। आपने किसी वेराइटी का नाम सुना किसी ने? किसमें वेराइटी हम वो पैदा करते हैं, ऐसा वो तैयार करते हैं। हमारे जो वैज्ञानिक, हमारे जो प्रोफेशनल है वो उन किस्मों को तैयार करते हैं। हमने सुना रात 1482, किसी के नाम सुना रात 1482 जैसे वेराइटी इन द व्हीट। आपने चने का कोई गनगौर या जीएनजी 1581 नाम सुना? गनगौर किसकी खेती होती है? जब अपन फार्मर फैमिली में बैठते हैं तो कभी ये नाम हमें सुनने को मिल जाता है किसका भी। सो वी डील्स इन द प्रोडक्शन ऑफ और द डेवलपमेंट ऑफ द वेराइटीज ऑफ द मेजर क्रॉप्स। व्हाट आर द पर्पस ऑफ दिस वेराइटी? टू टेक द हायर यील्ड ऑफ द क्रॉप्स। एक तो वेराइटी डेवलप करते हैं। वेराइटी क्या होती है? एक डिफाइंड जीनोटाइप होता है पर्टिकुलर क्रॉप्स। कौन सी साइंस डील करती है उसको? बॉटनी। और आगे चल के हायर एजुकेशन में प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स एक साइंस है जिसके माध्यम से, जिसके प्रिंसिपल को प्रयोग करते हुए हम किसी पौधे की उपज को बढ़ा सकते हैं। वो तकनीक देते हैं जो उसके खेत तैयार होने से उसके हार्वेस्टिंग तक का उसको कैसे मैनेज करें, कब उसको बिजाई करनी है, कितना बीज काम में लेना है, बीज के साथ साथ कौन से केमिकल फर्टिलाइजर्स उसको यूज करने हैं, उसके बाद में उसका कैसे बीज उपचार करना, सीड ट्रीटमेंट करना, और साथ में अगर उसमें कीट या बीमारी आती है तो उनका कैसे रोकथाम करना। डेवलप द टेक्नोलॉजी फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द क्रॉप्स इन द फील्ड्स एज वेल एज टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम द डिजीज एंड इंसेक्ट एंड डिजीज, कीट और बीमारी। दो से फसलों को कम से कम नुकसान हो उसके लिए क्या तकनीक है, कौन से केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स उसको काम में लेने हैं, उनके बारे में अनुसंधान करके किसानों को एडवाइजरी जारी करते हैं ताकि वो हमारे देश का जो उत्पादन, जो हमारे किसान है उसको अपनी जो उपज देता, जो फसल लगाता है उसका अधिक से अधिक उत्पादन मिल सके।
में आओगे आप प्लस 10th में आओगे, उसके बाद देयर इज ए चेंज इन स्ट्रीम्स। अब 10th तक आप एक ही सिलेबस पढ़ते हैं, उसके बाद देयर इज ए चेंज इन द स्ट्रीम्स एज पर योर चॉइस एंड इंटेलिजेंस है और एग्रीकल्चर और मेडिकल। हम यहाँ इस कैंपस में जो भी आता है उसके एग्रीकल्चर की बात करते हैं, वी डील्स इन एग्रीकल्चर। और आप में से भी हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं या एडवाइस करते हैं, व्हेनेवर यू हैव +2 और +1 you go for agriculture, because we need some professionals who can work for the farmer community, and then so that there is a increase the productions, and we have a responsibility to feed that increasing populations. Basically the natural resources, soil, irrigation water, and then some other resources. हमारे पास एक जमीन का टुकड़े है, जो जमीन की साइज है वो फिक्स है। हमारे पास जो पानी देने के लिए जो इरिगेशन देते हैं फसलों को वो सीमित है। हमें देश की बढ़ती पॉपुलेशन को अनाज और खाद्यान्न का, फलों का, सब्जियों का, दूध का उत्पादन करना। हमें कहीं न कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं किसान के साथ काम करके और उन उन्नत तकनीकों को विकास करके। आप में से कौन एग्रीकल्चर पढ़ना चाहेगा? कौन एग्रीकल्चर? प्लीज। आपके जो भी जिस किड्स के, जिस स्टूडेंट्स की अगर खेती होती है तो आप हमारा नंबर दीजिए अपने पेरेंट्स को, अपने गार्जियन को, कि हम आज ये गैस स्टेशन पे मतलब टूर करके आए थे, वहाँ खेती के बारे में बात कर रहे थे, और हम आपके टीचर को हमारा नंबर दे देंगे। किसी भी फैमिली में जो भी आपका अगर बाई चांस आपकी एग्रीकल्चरल फैमिली है तो आप हमारा नंबर दीजिए, ताकि उनको अगर कोई भी खेती वाली जानकारी, उन्नत तकनीक, कोई समस्या खेत की या और किसी तरह का की कोई भी जानकारी अगर खेती से संबंधित चाहिए तो वो हमसे संपर्क करें।